अगला क्वेश्चन 58th, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है juridical basis of what, of the claims of the coastal state over continental shelf in the light of this judgment of North Sea continental shelf case. Okay, so let's start. So the case, this North Sea continental shelf case, which was between the Germany versus Denmark and Germany versus Netherlands. So basically Germany versus Denmark and Netherlands of 69. Dispute was over the delimitation of this shelf. Key issues was whether they must follow the equidistance principle or not, or whether equity should win over equidistance principle. So this equidistance principle was given in the Article 6 of this Geneva, the first convention. So this was the dispute. The case was this: parties, basically parties, then the context and the issue. The issue was equidistance principle. So the basis of the claim is what? The basis of claim, the ICJ clarified, are based on sovereign rights of which are inherent in the territorial sovereignty. Okay, because shelf belongs to territorial, the extension, natural prolongation of the land. So the sovereignty of the territory also includes sovereignty over continental shelf area. Okay. Not occupation proclamation, ठीक है. Key principle of the inherent right. Okay, the natural prolongation brings inherent right. So this is a doctrine. When you have continental shelf, is the natural prolongation of the coastal states land territory. Okay, obviously यही इसी वजह से वो उसकी sovereign inherent right है. So it is ipso facto as well as ab initio. So these two keywords have to be written anyhow. Ipso facto, ab initio. Why? Because of natural prolongation, without any need of express declaration. So this concept later became Article 77 of the UN Clause. The rights over the continental shelf do not depend on occupation, effective notion, or any express proclamation, because they are inherent. They are ipso facto and ab initio. Sovereign rights for the exploration and exploitation. Coastal state have exclusive sovereign rights over exploring and exploiting the natural resources on the continental shelf. No other state may undertake such activity without consent. Okay, why? Because it is sovereign right. So sovereign right है. Water column. Okay, sovereign right of the exploration. This have exclusive sovereign right for natural government may undertake without consent. This applies to seawater and subsoil resources, not the water column, which is governed separately by EEZ. Okay, delimitation principle. No single method is automatically binding. So sovereign rights for the exploitation. पहला वाला क्या था? इनहेरेंट राइट है. दूसरा सोवरेन राइट है. अच्छा हाँ, जो भी आपकी शेल्फ में मिलेगा उसका एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई और नहीं ले सकता बिना कंसेंट के. नो अदर स्टेट. और दिस अप्लाई टू सी बेड सबसॉइल नॉट दी वाटर कॉलम, क्योंकि वो EEZ से गवर्न होता है. हाँ, उसके बाद आएगा डीलिमिटेशन वाला प्रिंसिपल. डीलिमिटेशन में क्या है कि इसमें ये नो सिंगल मेथड. डीलिमिटेशन का कोई सिंगल मेथड तो है नहीं. लाइक इक्विडिस्टेंस इज ऑटोमेटिकली बाइंडिंग अनलेस द स्टेट एग्री. स्टेट से पूछ के ही करना पड़ेगा आपको. और डीलिमिटेशन मस्ट बी डन बाय एग्रीमेंट. ठीक है. नो सिंगल मेथड लाइक इक्विडिस्टेंस जो कि ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो, तो स्टेट को एग्री करना ही पड़ेगा. एग्रीमेंट से ही चलेगा. और इक्विटेबल प्रिंसिपल ज़्यादा चलेगा. ठीक है. स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी ले लेंगे, जैसे कॉन्वेट कोस्टल ज्योग्राफी, ये सब है. कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल, जो कि 58 में दे रखा था. क्यों? क्योंकि जर्मनी वॉज नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन, इसलिए. अब यूएन क्लॉज पे आएंगे तो 76 है, 77 है, 83 है. कूल. तो 82 वाला जर्मन इन्फ्लुएंस पार्ट 6 ऑफ द यूएन क्लॉज. ठीक है. ये डेफिनेशन शेल्फ की क्या है? इंक्लूड नेचुरल प्रोलॉन्गेशन
टू दी आउटर एज ऑफ द कंटेनर मार्जिन, ये भी हमें पता है, इसकी डेफिनेशन 76 में दे रखी है, या फिर 200 नॉटिकल माइल। 77 के बोलता है राइट्स इनहेरेंट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव है, ओके, इनहेरेंट भी है और एक्सक्लूसिव भी है, कूल, राइट्स इनहेरेंट और एक्सक्लूसिव दोनों है। फिर उसके बाद आएगा डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, ठीक है, और इक्विटेबल प्रिंसिपल, दो चीज़ों पे चलेगा। 83 ने बोल दिया है इक्वी डिस्टेंस पे नहीं चलेगा, इक्विटेबल और एग्रीमेंट पे चलेगा। 83 बहुत अच्छा है। फिर कंक्लूजन में आएंगे तो शेल्फ वाला जो केस है ना, ये इस्टेब्लिश किया है जुरिडिकल बेसिस फॉर कोस्टल स्टेट। हाँ सही बात है, इस केस ने इस्टेब्लिश कर दिया जुरिडिकल बेसिस। क्या बेसिस होगा कोस्टल स्टेट्स का? वो नेचुरल प्रोलॉन्गेशन। तो बेसिस क्या है बता देता हूँ, बेसिस इज नेचुरल प्रोलॉन्गेशन ऑफ इट्स लैंड टेरिटरी। दूसरा राइट्स इनहेरेंट है, एक्सक्लूसिव है, सोवरेन है, ठीक है, उसकी जो राइट्स है वो इनहेरेंट है, एक्सक्लूसिव है, नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑक्यूपेशन प्रोक्लेमेशन, और इक्विटेबल प्रिंसिपल ही चलेगा। 83 में ही बोल दिया है, जो कोई रिजिड फार्मूला नहीं है, ठीक है, एग्रीमेंट बेस पे चलेगा, ओके। तो इसमें किया क्या है, आईसीजे ने शिफ्ट कर दिया इस केस में जो लीगल फाउंडेशन थी ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से इनहेरेंट राइट। ओह कूल, जोग्राफिकल एंटाइटलमेंट, शेपिंग 76, 77, 83। 76 बोल रहा था कि होगी क्या, आउटर मार्जिन, आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। 77 ने बोला आपके राइट्स इनहेरेंट है और एक्सक्लूसिव, और 83 ने बोला इक्वी डिस्टेंस है, नहीं है इक्वी डिस्टेंस, इक्विटेबल है। फिर लीगल रजीम पे आ जाओ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैज़ अंडरगॉन प्रोफाउंड चेंजेस। हाँ भैया पता है, ये जो शेल्फ है ना, इट हैज़ अंडरगॉन प्रोफाउंड चेंजेस। तो ये कौन कौन से चेंजेस हैं? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पहले क्या था? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पहले जो 58 से पहले था वो ट्रूमेन प्रोक्लेमेशन था 75 का, ठीक है, जिसने बोला था सी बेड होगा, सबसॉइल होगी एडजेसेंट टू द कोस्ट, और लिमिटेड कितना था 200 नॉटिकल माइल। या फिर और वेयर द एक्सप्लोरेशन इज पॉसिबल, ये ट्रूमेन बोलता था ना, यूएस का था, इसलिए 58 की आई। उसके बाद 58 वाली ने क्या बोला है हमारी, 58 वाली ने बोला है ये 58 जिनेवा कन्वेंशन ने बोला है, अच्छा करना है, 58 वाली जिनेवा ने बोला है कि इसने बता दिया डेप्थ और एक्सप्लॉयबिलिटी क्राइटेरिया, पर एक्सप्लॉयबिलिटी क्राइटेरिया बहुत गंदा था, वरना तो पावरफुल नेशन एक्सप्लॉइट करते जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजी केप्ट एडवांसिंग, तो एक्सप्लॉयबिलिटी वाला जो था वही मुझे मैं कह रहा हूँ, तो इसमें कोई लीगल सर्टेनिटी नहीं आ पा रही थी, इसलिए 82 वाले ने इसको शांत कर दिया। 82 ने बोला ज्योग्राफी भी देखेंगे, डिस्टेंस बेस्ड डेफिनेशन दोनों ही देखेंगे, उसने पुरानी एक्सप्लॉयटेबिलिटी को हटा दिया। कैसे? 76 में अभी हमने देखा था ऊपर कि भाई नेचुरल प्रोलॉन्गेशन इसकी ज्योग्राफी हो गई और डिस्टेंस बेस्ड हो गया 200 नॉटिकल माइल्स उसका, ठीक है, दोनों ही चीज़ हो गई। नेचुरल में बेड और सॉइल आएगा उसका नीचे का, नेचुरल एक्सटेंशन आएगा, आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन आएगा, ठीक है, स्टेट ऑटोमेटिकली हैज़ द राइट अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ये आ जाएगा फ्रॉम द बेस लाइन। और आउटर लिमिट्स की दो चीज़ें आएंगी, या तो अगर बियॉन्ड जाएगा आपके आउटर एज कैन बी क्लेम्ड अप टू, या तो 350 नॉटिकल माइल या फिर 100 नॉटिकल माइल, कहाँ से? फ्रॉम दी 2500 मीटर आइसोबाथ, जो भी आपका ज़्यादा रहेगा वहाँ तक, या तो 350 नॉटिकल माइल तक आप ले जाओ उसे, या तो आपका 2500 मीटर की जो आइसोबाथ है, जो डेप्थ है बेसिकली, वहाँ से 100 नॉटिकल माइल्स, इतना। तो बियॉन्ड दिस एरिया कॉमन हेरिटेज आ जाएगा, ये भी लिख दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। और वो मैनेज कौन करेगा? सीबेड अथॉरिटी। सो दीज आर एक्स्ट्रा मार्क्स। जिसमें आपने कॉमन हेरिटेज भी लिख दिया और कॉन अथॉरिटी भी लिख दी, दोनों ही लिख दिया। लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना ज़रा, लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा इसका 77 में तो बता ही दिया था। 77 में ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इप्सो फैक्टो और एब इनिशियो, इनहेरेंट है ना क्योंकि, और है किस लिए एक्सप्लॉयड, ये है ना मिनरल और सेडिमेंट्री स्पीशीज़ जो है, ठीक है, मिनरल के अलावा सेडिमेंट्री स्पीशीज कर देंगे, और ये आपका वाटर स्टेटस को अफेक्ट नहीं करेगा ना एयर स्पेस को, ठीक है। हाँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी EEZ में चला जाएगा, मगर एयर स्पेस तो किसी में भी कहीं से भी कंट्रोल नहीं कर सकते आप। फिर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अर्लियर कॉन्सेप्ट की शिफ्ट, ओके। पहला एक्सप्लॉयटेबिलिटी था 50 वाले में, अब हो गया जियोलॉजी और डिस्टेंस दोनों।
ठीक है, जियोलॉजी में नेचुरल प्रोलॉन्गेशन है और डिस्टेंस में 200 है या 350 तक का है। फिर अब पहले अनसर्टेन थी, अब सर्टेन हो गया हमारा फार्मूला। ऊपर से CLC का वेरिफिकेशन भी आ गया भाई, नया वाला, ये भी तो लिखो। और टेक्नोलॉजी से पहले लिंक था, अब इंडिपेंडेंट हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं से इंडिपेंडेंट हो गया। फिर एनवायरनमेंट का कुछ था ही नहीं, अब तो एनवायरनमेंट की ड्यूटी बहुत अच्छी हो गई है इसमें, तो ये वाला भी क्लियर है। टेक्नोलॉजी मत भूलना, अनसर्टेनिटी टेक्नोलॉजी है ना, इसलिए। और एक्सप्लॉयटेबिलिटी, ठीक है। कंक्लूजन में लिख देंगे प्रेजेंट कॉन्सेप्ट यूएन क्लॉज का जो है ना, वो शेल्फ को जियोलॉजी रियलिटी और लीगल एंटाइटलमेंट दोनों ही तरीके से कहता है। जियोलॉजिकल तो आपकी है ही रियलिटी, उसी की बेसिस पे हम आपको लीगली एंटाइटल करेंगे कि अब आप ही हकदार हो, आप ही मालिक हो अपनी जियोलॉजिकल रियलिटी के, क्योंकि रियलिटी में ये पूरी जियोलॉजी आप ही को बिलोंग करती है, इसलिए। तो इस तरीके से आप लिख के आ जाना इसकी एक्सप्लेनेशन, कहाँ तक 200 तक ऑटोमेटिकली। मगर उसके बियॉन्ड जाओगे तो वो जस्टिफाई करना पड़ेगा CLC से। नहीं भाई, CLC थोड़ी है, CLCS, हाँ। फिर जोन ऑफ इनहेरेंट और सोवरेन राइट है, ठीक है। जोन ऑफ इनहेरेंट सोवरेन राइट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्यूपेशन प्रोक्लेमेशन, ना कोई ऑक्यूपाई कर सकता है, ना कोई इसे प्रोक्लेमेशन से अपना बना सकता है। जैसे ट्रूमन प्रोक्लेमेशन था ना शुरू में, एक्सप्लॉयटेबिलिटी तो 58 में आया था, ठीक है। हाँ, उसका भी वही था वैसे। तो ये क्लियर कर दिया इसने, क्लैरिटी लिया है, ठीक है, क्लियरली डीलिमिट कर दिया, एनवायरनमेंट भी रेगुलेट कर दिया ब्रो इसका। और इक्विटेबल डीलिमिटेशन लाया है 83 के अकॉर्डिंग। लिख के आना है, छोड़ना नहीं है 83, चाहे ना पूछा हो फिर भी लिख के आना है। अब टेक्नोलॉजी लिमिटेड जोन है, फिक्स लीगल एंटाइटलमेंट है, रूटेड इन द नेचुरल प्रोलॉन्गेशन। हाँ ठीक है, इंश्योरेंस कर देंगे सर्टिनिटी एंड क्लैरिटी, गुड इनफ। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस हो गया, अब फिशरीज वाला केस ले लेते हैं और इसी से आएगा स्ट्रेट बेसलाइन सिस्टम। तो ये दोनों देख लो, यूके नॉर्वे के बीच का है, 51 का है, ये पता होना चाहिए कम से कम। और इसी से कनेक्शन आया था स्ट्रेट बेसलाइन सिस्टम का। तो यूके और नॉर्वे, मछली कौन पकड़ेगा? तो वेदर यूके का यूज़ ऑफ द स्ट्रेट, अच्छा यूके ऑलरेडी यूज़ कर रहा था स्ट्रेट बेसलाइन मेथड को मेजर करने के लिए अपना टेरिटोरियल सी, ठीक है, वैलिड है या नहीं अंडर इंटरनेशनल लॉ, यही क्वेश्चन है कि अगर मैं अपने टेरिटोरियल सी को नापने के लिए स्ट्रेट बेसलाइन सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो क्या ये वैलिड है, क्या ये इन सिंक है इंटरनेशनल लॉ के या नहीं। ओके, द कॉन्टेक्स्ट क्या, नॉर्वे विद इस डीपली इंडेंटेड कोस्ट लाइन। नॉर्वे की बहुत ही डीपली इंडेंटेड है, बहुत सारे डेंट हैं इसकी कोस्ट लाइन पर, न्यूमरस आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो क्लेम किया फिशिंग राइट एज इंटरनल वाटर, अच्छा फिशिंग जोन जो है इसका इंटरनल वाटर इसने किया है, ठीक है, बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस कनेक्टिंग द आउटर मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द कोस्ट एंड द आइलैंड्स, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। यूके ऑब्जेक्ट तो करेगा ही कि भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम। यूके ने ऑब्जेक्ट किया, सेइंग दिस मैटर डेविएटेड फ्रॉम द लो वाटर मार्क, ठीक है, एनक्रोच ऑन हाई सीज का फिशिंग राइट्स, ठीक है। तो नॉर्वे की पोजीशन क्या है, कोस्ट लाइन वॉज हाईली इरेगुलर, सही बात है एकदम। नॉर्मल बेस लाइन तो इम्प्रैक्टिकल जिगजैग बाउंड्री बना देगी इसके लिए, ठीक है। और जो इसके मल्टीपल आइलैंड्स है ना, वो हिस्टोरिकली बीन यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय नॉर्वेजियन फिशरमैन, ठीक है। जो इसके ये आइलैंड्स है ना, लिख देते हैं, आइलैंड्स हैव हिस्टोरिकली बीन यूज्ड, ठीक है, एक्सक्लूसिवली बाय नॉर्वेजियन फिशरमैन, हिस्टोरिक टाइटल है उसका, ठीक है, एक्सक्लूसिव हिस्टोरिक टाइटल है। और ये हाईली इरेगुलर तो जिगजैग बाउंड्री बन जाती है इसकी। तो स्ट्रेट बेसलाइन सिस्टम जो है ये नई चीज़ अच्छी है। एनक्लोजिंग वाटर, स्ट्रेट बेसलाइंस एनक्लोजिंग वाटर वर इनकंसिस्टेंट विद द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस थी इसकी। इसका खुद का कस्टम बोलो मुझसे, CIL बोल देता हूँ इसके लिए, तो हो गई ना। वाइडली एक्सेप्टेड डोमेस्टिकली, ओके, इंटरनेशनली भी है क्या, इंटरनेशनली भी, ओके गुड। तो डिसीजन कब आया है, 51 में। कोर्ट अपहेल्ड दी नॉर्वेज का मेथड। स्पेशल जोग्राफिक कंडीशन भी देखेंगे और स्ट्रेट बेसलाइन सिस्टम भी देखेंगे। जोग्राफिक कैसे, आपकी बहुत ज़्यादा ही ये हाईली इंडेंटेड है,
इसलिए, या फिर आपके फ्रिंज आइलैंड्स हैं तो वो जस्टिफाई कर देंगे डेविएशन फ्रॉम दी, जस्टिफाई करते हैं डेविएशन फ्रॉम दी नॉर्मल बेसलाइन मेथड। और स्ट्रेट बेसलाइन मेथड क्या है, ये ड्रॉ करेगा कनेक्टिंग अप्रोप्रिएट पॉइंट्स, कनेक्टिंग द आउटर मोस्ट पॉइंट्स लिख दिया, है ना। लाइन डू नॉट डिपार्ट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द जनरल डायरेक्शन ऑफ द कोस्ट, बहुत ज़्यादा ही बचाना नहीं है लाइन्स को। और इंक्लोज वाटर आर क्लोजली लिंक्ड विद द लैंड डोमेन, आप इंक्लोज वाटर उसी को बोल पाओगे जो आपकी लैंड डोमेन से आसपास है। दूर दराज की चीज़ों को इनलैंड वाटर थोड़ी बोल दोगे, इंक्लोज वाटर थोड़ी बोल दोगे। इसलिए तो एक तो आपकी जो लाइन्स है, एक बात की गई इसने लाइन पे, बता देता हूँ, एक बात की गई इसने लाइन पे कि लाइन बहुत ज़्यादा डिपार्ट नहीं करनी चाहिए, और एक वाटर एनक्लोज वाटर जिसकी, ठीक है, वो लिंक होना चाहिए आपकी लैंड से। हिस्टोरिक टाइटल सही बात है, क्यों, क्योंकि इसका जो टाइटल है वो लॉन्ग है, कंसिस्टेंट है और अनडिस्प्यूटेड है बहुत टाइम से, तो वो एक्सरसाइज किया इसने सोवरेंटी का, ठीक है, तो उसकी लेजिटिमेसी और सपोर्ट हो गई, बहुत टाइम से है, बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है, वही जो कस्टम के इसेंशियल्स होते हैं, ड्यूरेशन कंसिस्टेंट है, बहुत टाइम से चल रहा है, अनडिस्प्यूटेड है, तो ये सब बेसिकली। अरे इसमें वो भी तो आएगा, ये वाला जो है ना, ये ऑब्जेक्टर, कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टर प्रोटेस्ट वगैरह जो, वो भी आता है इसमें। फिर नो वायलेशन, इसमें कोई वायलेशन भी, नो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वेरी गुड, ये तो देखना ही पड़ेगा हमें, इसलिए यहाँ लिंक है, नो वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक प्रोहिबिटरी रूल तो है नहीं जो इसको मना करे, तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, यू आर इवन हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, गुड। अब इन्फ्लुएंस में आते हैं, इसका क्या इन्फ्लुएंस था फिशरी केस का भाई। आर्टिकल 7 ने सीधा सीधा बोल दिया स्ट्रेट बेसलाइन सिस्टम, जब इतने मेहनत करके इतने सालों में डेवलप होके आया है नॉर्वे यूके के केस से, तो क्यों ना इसको यूज़ कर लें, दोबारा से थोड़ी इस पर मेहनत करेंगे, इसलिए। और कहाँ पे करेंगे इसका यूज़, जहाँ पे आपका एक तो बहुत ही ये इंडेंटेड हो, फ्रिंज आइलैंड्स हो आपके पास, प्लस चेंजिंग हो, जैसे डेल्टा अनस्टेबल हो, ठीक है, एग्जाम्पल डेल्टा, ओके। फिर क्या कंडीशन अंडर यूएन क्लॉज रिफ्लेक्ट आईसीजे की रीजनिंग, सही बात है ये जो कंडीशन है आईसीजे की रीजनिंग दिखाती है, स्पेशली द रिक्वायरमेंट दैट लाइंस मस्ट नॉट डिपार्ट फ्रॉम द जनरल डायरेक्शन, कौन सी वाली कि लाइंस मस्ट नॉट डिपार्ट फ्रॉम द जनरल डायरेक्शन, वेरी गुड। और एज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, CIL की तरह, स्ट्रेट बेस लाइन सिस्टम इज इक्वल टू CIL, कितना इंपॉर्टेंट हो गया डेवलपमेंट ऑफ CIL ऑल्सो, IL ऑल्सो। और स्ट्रेंथिंग केस में प्रैक्टिस कौन सी, प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कैन क्रिस्टलाइज इनटू बाइंडिंग कस्टमर लॉ, ठीक है। फिर आते हैं नॉर्मल बेस लाइन, लो वाटर लाइन अलॉन्ग कोस्ट, हाँ स्पेशल वाली क्या है, स्पेशल है स्ट्रेट वाली, नॉर्मल तो हमें पता ही है, ये वाली क्राइटेरिया क्या है, जनरल डायरेक्शन ऑफ द कोस्ट मेंटेन, हाँ डायरेक्शन ही नहीं बदलने की ब्रो, मैं आपको लेकिन डायरेक्शन क्या है, क्लोज लिंक बिटवीन वाटर एंड क्लोज वाटर लाइन, तो रिजल्ट क्या है, वाटर लैंड वर्ड ऑफ द बेस लाइन, वाटर सही है, स्पेशल के लिए ये बना सकते हैं वैसे, पूछ नहीं सकते, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी क्या है, इसको अलग से करते हैं, शायद ये क्लॉज अप खत्म हो गया।